Good afternoon, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all back to the second half of Salon Management Congress Delhi 2024. हमारा जो अगला सेशन है वो बहुत ही हैवी साउंडिंग है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और खासकर सैलून ओनर्स के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि लीगल इश्यूज काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, इंट्रिकेसीज होती हैं, बट वी हैव अ वेरी गुड पैनल लाइन अप फॉर यू so that you are able to understand legal aspects of running a salon business in more detail in a simple way. तो हमारे साथ आज हैं एक एडवोकेट जो कि ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक्सेल करते हैं और दो सैलून ओनर्स जो हमारे साथ में सैलून पर्सपेक्टिव शेयर करने वाले हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी लोग ये सलाह देते हैं कि काले कोट वालों से दूर रहना चाहिए लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये लॉयर्स जो हैं, एडवोकेट्स जो हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जब हम सैलून बिजनेस चलाते हैं. एंड दैट इज़ वाई वी हैव पुट टुगेदर दिस पैनल फॉर यू टू टॉक मोर अबाउट द लीगल एस्पेक्ट्स दैट एवरी बिजनेस ओनर शुड बी अवेयर ऑफ. May I please request on stage Ms. Dipali Dobhal, advocate and Senior Associate Trademarks Prosecution at Intel Advocare. Thank you. Please. My next panelist is Mr. Varun Attri, owner Varun Attri Unisex Salon and VA Products. Varun, can we please have you on stage? And my final panelist is Karan Diol, Creative Director, Tweak Salon. Hi, Karan. Thank you so much for joining us. So before we start the discussion, a little bit of introduction about our speakers. Advocate Dipali Dobhal is an expert on intellectual property rights and trademark, primarily trademark and design. She has also worked on arbitration and litigation with a diversified portfolio that she brings to the table an edge when it comes to legal issues around trademarks. So thank you so much for joining us today, Dipali. Varun Attri is a man who dons many hats. After establishing himself as a trailblazing young hairstylist, he has etched his name as a successful entrepreneur with his salon and product range, thereby bringing a well-rounded perspective of the industry. Welcome on board, Varun. Having trained under international artist Karan Diol brings his unique sense of fashion and aesthetic in every hairstyle he creates. He has worked as the ID artist for L'Oreal Professionnel, styled Bollywood celebrities, and turned his salon into a destination for hair fashion. Can we have a round of applause for Karan, please? All right, so let's get started on this panel discussion. So, firstly, the first question is to the lady in black. Can you quickly tell us what is trademark and what is intellectual property right? All right. So I'll try to make it as non-legal as possible. Legal isn't the sexiest subject. I think when it comes to the interest of people, you hear the word legal and you're automatically intimidated. Oh my God, there's going to be some lingo or some heavy words that, I cannot grasp. So I'll just try to make it as simple as possible. So I'm sure in some capacity आप में से सबने कभी ना कभी trademark word सुना तो होगा. So as the name suggests, trademark, right? It is a mark that represents whatever trade it is that you're doing. In salon context, the name of your salon, or if you're running a particular any business, suppose you decide to launch a cosmetic range that belongs to your salon, right? You'll thereafter be using the same name for that range as well. So, and all the goods, आप कोई भी service provide कर रहे हैं, आप कोई भी products launch कर रहे हैं, anything that is coming under a particular brand that you've created, now that would be trademark. Ab the broad scope of intellectual property is any property that you've created through your intellect. That can include, if you've created you have some product, for example, a shampoo. It has some artistic work on it. You
went to some agency and you had them create a very particular kind of artistic work for your product. Now that would constitute your intellectual property. You came up with a brand name that is unique. Gitanjali, Lux, Tweak, for example, all of these are brand names. So these are the brand names that would constitute your intellectual property because you would be using them अपने consumer को बताने के लिए कि this is the place or anything that is associated इस नाम के साथ में ये मेरा product है, ये मेरी service है, which is crucial. Branding is at the very heart of any business. That is how consumers recognize you. So it is absolutely crucial that you secure that from the very beginning. From the stage of conceptualization, when you initially start thinking that, oh, I'm going to be starting this particular business, any business. So at that very stage, you will be giving a unique name to it. Even if you are like, aapka project stages may be discussion hai, you will be giving a specific name to that project. Okay, this is this project. And everybody recognizes it with that name. So that is how trademarks work and that is how IP works. So it's a very crucial element of every business. And I think it's very important for all level of business owners to understand how important it is and how helpful it is in the future when you're expanding your business. Even if you're running on a small scale, I think it's important that you secure that and you make sure that your goodwill that is associated with that name is protected. So that is trademark and intellectual property succinctly put. Varun, coming to you, have you ever encountered any trademark related issues in your business? ट्रेडमार्क की बात अगर आती है तो ये ऑप्शनल होता है, ये मैंडेट नहीं होता, बट मेरी तरफ से इफ़ आई वुड से माय पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कोई भी सैलून स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल लेवल पे, आपको नहीं पता उसकी हाइट्स कहाँ तक जाती है, आप कितना हार्ड वर्क पुट ऑन करने वाले हैं, कितनी मेहनत करने वाले हैं, और आप उसको नाम को एक लेवल पे लेके जाओ और वो ट्रेडमार्क रजिस्टर ना हो और वही सैलून कोई और ओपन कर ले आपके नाम से, तो वहाँ आप सफ़र करोगे. तो ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका सैलून का नाम, आपके ब्रांड, आपके जो भी ब्रांड है, जो भी एंटरप्राइजेज है, वो कॉपी नहीं हो सकता. तो अगर ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर करा लिया तो इसका मतलब है वो नाम आपका हो गया, तो कोई और नहीं ले सकता. आपकी पहचान, आपकी मेहनत आपकी ही होगी और इसको कोई और नहीं ले पाएगा. ट्रेडमार्क की जब मैंने बात करी, जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले पूरा होमवर्क किया था, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं किसी भी तरीके से स्ट्रगल करूं, और उसके लिए मैंने जितनी भी लीगल चीज़ें थी वो कवर अप करी, और मैंने इनिशियली स्टार्ट में ही ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करा लिया था. जैसे मेरे प्रोडक्ट्स भी आते हैं उसका भी मैंने रजिस्टर करा लिया था, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. बट मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आप अपने सारे जितने भी लोग इंटरप्राइजेस, ब्रांड, सैलून ओनर्स जो भी हैं वो करें इस चीज़ को, ये हेल्पफुल होता है. आपकी एक प्रोडक्ट लाइन भी है VA प्रोडक्ट्स करके, तो उसका रजिस्ट्रेशन का और सैलून के रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले जब भी हम सैलून रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें पहले 3 फैक्टर आते हैं. क्या ये LLP है, लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, या पार्टनरशिप है, या सोल प्रोप्राइटर है, उसके अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं. देन उसके बाद हमें वो फाइंड आउट करना है कि ठीक है हमारा ये सोल प्रोप्राइटर है जो कि सिंगल हैंडेड है, सारे शेयर एक ही बंदे के ऊपर होते हैं. आपकी वो रजिस्ट्रेशन होती है. आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद बहुत इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिटेल में बात करूं, जब आप सैलून स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने फाइंड आउट करा आपका किस तरीके का पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, या लिमिटेड कंपनी है. उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको स्टार्टअप बेनिफिट उठाना है, गवर्नमेंट से नहीं उठाना. इसको कहते हैं MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. इसका एक्ट 2006 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट. अब आई डोंट नो, ये सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि सैलून कांग्रेस मैनेजमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले रही है ताकि हम अपना जितना भी एक्सपीरियंस है और हम आपसे शेयर कर पा रहे हैं वो. क्योंकि इस एक्ट की वजह से सैलून पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, तो उनको नहीं पता था ये एक्ट की वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं. अगर आप जितने भी ओनर्स हैं इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा 20 लाख करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने दिया है ऐसी इंटरप्राइजेस के लिए ताकि आप बेनिफिट उठा सके. तो इसके बाद
और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन अब मैं अपने क्वेश्चन पे बैक टू आऊँगा। तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या होता है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है आपके नाम का, उसके बाद एक IS इफ्सको करके एक सर्टिफिकेशन होती है, जो आपको ये देखा जाता है कि जो आपका गुड है, जो इंग्रेडिएंट है, उनकी जो क्वालिटी है, वो अप टू मार्क है या नहीं है, जैसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एकदम उससे सिमिलर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये मैंने करी है और मेरे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फैंटास्टिक। करण, कमिंग टू यू, आप ट्वीक सलोन में से जुड़े हुए हैं एंड ट्वीक इज पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप। यस, सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने अपना ब्रांड नेम कैसे बनाया है और लीगली उसे कैसे अश्योर किया है? See, there was a lot of hard work in starting. We started in 2020 and 21. जब pandemic first lockdown finish हुआ ही था, that time the brand started. It was supposed to open before, but pandemic करके got delayed. As she also mentioned once, marketing is something which is very important for a new brand working in Delhi, heart of the city, and making its own niche. Competing along with its own mother company, which is Gitanjali, which has more than 200 doors, Yes. which was initially very difficult. When you talk about legal aspect, they are already into it क्योंकि इनका module already चल रहा है Gitanjali का. So I believe it's slightly easier for them to register the name and to go through the process. As Varun said कि कोई नया brand हो उसके लिए they have to take care of a lot of things. So in our case, Gitanjali was a bit of pro in doing all that. So उनको already line up था सारा system module. So it was slightly easier for them. But it was definitely a lot of challenge opening in pandemic. उसके बाद second lockdown आया, then we shut down for a few time. And opening in a mall was a different experience altogether because salon open market में हो या malls में हो, walk-in matters. It's a different aspect of walk-in, number of people coming in and coming out. So there were a lot of challenges, but we've been good from last 4 years, and it's the third salon we opened recently. So yeah, it's been good. Right. Thank you, Karan. Coming to you, Dipali, from your experience of dealing with cases about trademark and IP, क्या कारण है कि लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराते हैं और क्या कारण है कि वो दूसरों के ब्रांड नेम्स यूज करना चाहते हैं? आई थिंक सबसे पहला रीज़न तो यही है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेडमार्क होता क्या है. आई थिंक IP, अब ऑब्वियसली आई एम वर्किंग इन द फील्ड तो आई एम एक्सपोज टू इट एवरी डे, तो मुझे तो लगता है कि वो आई एम श्योर पता ही होगा. बट व्हेन यू स्पीक टू अ लेमैन, आप किसी ऑर्डिनरी आदमी से जाके बात करो एंड यू टॉक टू देम अबाउट कि अरे आपने इसका कॉपीराइट करवाया है, लाइक कॉपीराइट क्या होता है, राइट? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज educating business owners, small business, आप ठेला चला रहे, doesn't matter. You need to know about what rights you have and how you can exploit them to further your business. अगर आपने मेहनत करके कोई brand name बनाया है and you intend to pursue it to the ends of earth, right? So you need to know कि क्या चीज़ आपके पास में है, how can you secure it, आप उसका use कैसे कर सकते हैं, how can you commercialize it, how will you secure it for any future contingencies? So all of these things come into play. आप जैसे the question की a lot of times, so I did actually, I'll share an anecdote. I did have a friend who started a business with respect to some cosmetic products. And initial stages में जब वो लोग product develop कर रहे थे, they came up with a name, a brand name, and they, in fact, they had even done their due diligence. So trademarks में क्या होता है, you will do like a pre-filing search. So initially when you're conceptualizing, what you will do is you'll pick a few names and then you'll decide कि अच्छा this is a name that sounds very unique. You can do like a simple Google search. MCA की जो website है उसमें there's a register of companies as well. You can go and check कि अच्छा इस नाम से कोई company registered तो नहीं है. There are a few free websites available. In fact जो trademarks registry का जो एक्सेस है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि अच्छा ऐसे नाम का कोई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो यू कैन गो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो. इस बेसिक चीज के लिए यू डू नॉट रिक्वायर लॉयर्स. वंस यू फाइनलाइज 3-4 नेम्स कि अच्छा दीज आर 3-4 नेम्स दैट आई थिंक आर गुड एंड यूनिक,
So that is when lawyers come in. So you want their final get go कि अच्छा ये 4 नाम है, इनमें से this is the least risky thing. So again, going back to the anecdote, the friend had created a name, right? And they had done their due diligence initially, but the person that they had gone through had not done their homework properly, right? They launched the product. It was quite famous. I think उनका 1 crore something का market share था, is what I've been told. And then suddenly they got a cease and desist. कि अरे this mark is infringing on my mark and you cannot use it. This is happening already a few months into the business. It has grown. They have products on Amazon, Flipkart. They can't do anything now. Only thing you can do is go to court and fight for your rights. But अगर उस दूसरे बंदे का mark आपसे पहले का register है, he's been using it for way long than you have. Even if he's using it within one shop in Delhi. He's just selling it, but he has a registration. You cannot do anything. What is left? You'll have to liquidate your inventory. You lose your goodwill. You have to start from scratch. So that becomes a huge issue. So it is very important कि आप initially stages पे when you're conceptualizing your business, in that stages you make clear that the mark you're choosing is something unique and it's not overlapping with any other mark. Another thing that I hear from a lot of clients is जब हमारे पास आते हैं वो लोग ट्रेडिंग चूज करने के लिए, they'll be like कि अरे हमें कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, we want 0% risk. But that is also impossible. There's nothing in business that has no risk at all, because you cannot anticipate how any third person would be acting. So trademark registration में what happens if your mark has gone through trademark registry में जो भी हो रहा है, रजिस्ट्री ने आपका मार्क एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है ये मार्क आपका, हमने मान लिया कि वो है रजिस्ट्रेशन के लिए. उसके बाद 4 महीने के लिए मार्क विल बी पब्लिश्ड. जैसे न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, देयर इज अ ट्रेडमार्क जर्नल. उस जर्नल में आपका मार्क पब्लिश हो जाएगा, आपके नाम के साथ किस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, ऑल ऑफ दीज डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड. दैट इज अवेलेबल टू कॉमन पब्लिक, बिजनेस ओनर्स, कोई भी लोग हैं वो देख सकते हैं कि आप किस चीज़ पे राइट्स क्लेम कर रहे हैं. इफ दे फील कि दैट इज इन्फ्रिंजिंग ऑन देयर राइट, on their pre-existing mark, on their brand, in any capacity, they can file an opposition. And now again that adds like 2 or 3 years more to the process. That is if you win. नहीं होता if they think कि if the registry thinks कि नहीं ये बहुत same है, your mark looks copied to that mark, तो फिर again you're back to 0. So again so वो चीज़ का ध्यान रखना. There's a certain degree of risk always, right? But you have to pick something that has the lowest risk possible, even if none. So that is what you have to go for. That is the sweet spot. Okay, this it requires a lot of due diligence. So put in your hard work if you want your brand to succeed. Varun, coming to you, अक्सर beauty industry में लोग इतने educated नहीं होते हैं, उनमें बिजनेस करने की इच्छा बहुत होती है, पर अवेयरनेस, एजुकेशन के लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ये सारी चीज़ों में वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं. इन शॉर्ट दे डोंट वांट दिस हेडेक. तो हाउ डू यू गो अबाउट दिस विद दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी? ऐसी मेंटालिटी आजकल तो वैसे चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. या और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं. यूट्यूब पे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में सब बताते हैं कि कैसे आप अपनी सैलून को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं. और ये अवेयरनेस धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि छोटे बच्चों से लेके बड़े तक हर बंदा आज की डेट में मोबाइल यूज़ करता है, और मोबाइल के अंदर होता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स इन विच अगर आपको कुछ भी जानना है, आपने क्या करना है, ब्राउज़र खोलना है, सर्च करना है, सारी चीज़ें आपके सामने. अब बात आती है कि जब आप सैलून ओपन करते हो, आप एक इन्वेस्टमेंट लगाते हो, आप अपना टाइम लगाते हो, आप अपने एफर्ट लगाते हो. और मेरे ख्याल से जब भी आप कोई चीज़ पहली बारी कर रहे हो तो वो आपका फर्स्ट बेबी होता है और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है आपके साथ, राइट? अगर आप इतनी ज़्यादा मेजर चीज़ कर रहे हो, पहली चीज़ अगर आप आर्टिस्ट हो, दूसरी चीज़ आप इन्वेस्टर हो. एक इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है. एक आर्टिस्ट अपनी जान, मेहनत, स्वेट सब कुछ लगा रहा है, अपना आर्ट दिखा रहा है, उसके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे को लगता है ये सब स्टार्ट करने से पहले एक रिस्क में जाना नहीं चाहिए कि बाद में सफ़र करें. 2 कदम पीछे जाना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए एंड देन जंप. तो इससे क्या होगा, आप सफ़र नहीं करेंगे. इससे क्या होगा, आपका कोई ट्रेडमार्क नहीं लेके जाएगा. इससे क्या होगा, आपको कभी किसी भी चीज़ों की वजह से लीगल चीज़ों में नहीं फंसना पड़ेगा. तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और रही बात अवेयरनेस की,
तो सैलून मैनेजमेंट कांग्रेस पहली चीज़, दूसरी चीज़ हम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, तीसरी चीज़ काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे शी इज़ अ लॉयर और ये भी चीज़ें शेयर कर रही हैं आज आपके साथ, आप काफ़ी सारी नई और अच्छी चीज़ें सीख पा रहे हो, ये लीगल वे में एकदम करेक्ट आपको साउंड कर रही हैं और बता रही हैं, और हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके निकल रहे हैं, तो हम आपको उस तरीके से बता रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को जब आप घर लेके जाओगे, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस चीज़ का, और कोशिश करेंगे आगे ऐसी चीज़ें और हो, और आई अप्रिशिएट, और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी नॉलेज हम आप तक पहुंचा पाएँ, शेयर करें, और मैं भी हम थोड़ी सी वीडियोस डालते हैं, कोशिश करूंगा। आज ये टॉपिक आया, इसके अंदर डेप्थ में गए और समझ में आया ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके ऊपर भी मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगा, ऑफ साइड भी और आज भी। ओके वरुण, बिफोर यू लेट गो, ये सारे प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? रियलिस्टिकली बताना कि अगर कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है या सोच रहा है करने की, तो क्या टाइमलाइन सोच के चले? देखो, आप अपना सैलून ओपन कर रहे हो, उसको बनाने के लिए टाइम लगता है, इंटीरियर बनाना है आपको तो उसमें टाइम लगता है, मेरे ख्याल 2 प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसमें भी टाइम लगता है, उसके बारे में बताऊंगा कितना टाइम लगता है। देखो, आपको मेक श्योर करना है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या प्राइस आपको फोकस करना है, किस चीज़ के लिए वो बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 तरीके की स्कैल्प होती है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको वो कर रखा है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है। आपको सीधा सीधा सटीक एकदम सिंपल तरीके से देखना है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, इतना मेरा प्राइस होना चाहिए, इस चीज़ पे वो काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेयर फॉल और डैंड्रफ की मार्केट बहुत वास्ट है, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है लगाने के लिए, आप एक बजट के साथ, रिस्क कम लेने के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने पूरा ध्यान दिया डैंड्रफ और हेयर फॉल के ऊपर, आपने निकाल दिया उसका शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, आपने मार्केट में लॉन्च किया, उसको एडवर्टाइज किया, उसके लाइसेंस पे काम किया, उसका नाम ऐसा सोचा कि वो इजीली बोला जाए, लोगों को रिमेंबर हो पाए, समझ में आ पाए, और आपका अगर वो प्रोडक्ट चल गया तो ऑब्वियस सी बात है इनकम आएगी। इनकम को आप अपनी फैक्ट्री में लगा सकते हैं या एक्सपर्ट्स में और हेल्प लेके ला सकते हैं, और वैरायटी उसके साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, यूएस का होना चाहिए, वहाँ का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सिंपल बात है, इफेक्टिव होना चाहिए, क्वालिटी A1 होनी चाहिए। अब बात आती है कॉम्बिनेशन स्कैल्प होती है, ड्राई स्कैल्प होती है और ऑयली स्कैल्प होती है। फिर बात आती है कंडीशनर की या मास्क की, उसमें भी लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है, 20 तरीके के मास्क निकाल रखे हैं, 20 तरीके के कंडीशनर निकाल रखे हैं। आप काफ़ी सारी वुमेन बैठी हैं यहाँ पे, आप मेरे को बताओ सबके बालों में क्या प्रॉब्लम होती है? फ्रिजीनेस, ड्राइनेस और थिनिंग, बालों की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, और ब्रेकेज। इसके अलावा आपको लगता है कि डैंड्रफ आपकी लेंथ में आ जाता है या आपकी लेंथ में कोई और तरीके की प्रॉब्लम आती है? तो इन सिंपल चीज़ों को लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है। अगर आप इसको सही तरीके से ग्रैब करके प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हिट होगा। अब मेरे 2 सैलून सेंटर हैं, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैं सही बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं और मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग मेरे को अब कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, आते हैं और वो रेफरेंस की वर्ड ऑफ माउथ की जैसे प्रोडक्ट उठाते हैं, मेरे को ये चाहिए, आप प्लीज़ पैक कर दो, मेरे को यही चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने वर्क किया, मैंने समझा कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है, 3-4 कंडीशनर नहीं निकालने, मेरे को 3 तरीके के शैम्पू निकालने, 2 तरीके के मास्क कंडीशनर निकालने, मेरे को कॉज पे ध्यान देना है। सबसे पहले कॉज पे ध्यान दिया, क्लिक हुआ मार्केट में, क्लाइंट को समझ में आया, आज मेरे को कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ से मेरा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। तो ऐसा है। पर ये सब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें कितना वक्त अच्छा, लग हाँ, जाता है? वो उन्होंने पूछा हाँ। तो मैंने बताया। तो अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है। जब हम इंटीरियर बनाते हैं, अपनी सैलून शॉप बनाते हैं, किसी में 2 महीने लगते हैं, किसी का 3 मंथ्स लगते हैं, राइट? उस चीज़ के अंदर आप एक बार सिट बैक होकर आराम से बैठो और आज समझो कि लीगल चीज़ों में हमें क्या क्या करना है। वही सोल प्रोप्राइटर या आपको पार्टनरशिप में जाना है, उसका फॉर्म सबमिट करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना है, उसको रजिस्टर करना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, आपको टैक्स नंबर चाहिए अपना। थर्ड चीज़, पैन नंबर होना चाहिए। फोर्थ चीज़, आपको ये देखना है कि आपको गवर्नमेंट MSME का फ़ायदा उठाना है नहीं उठाना, क्योंकि उससे आपको बहुत लो इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। आपको कंसेशन मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, वाटर बिल्स में आपको कंसेशन मिलेगा। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं MSME की जो लोगों को पता ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं उठा रहे हैं। बट पेंडेमिक आ जाता है तो फिर पीछे रोते हैं कि यार सैलून बंद हो गया, मेरा तो बहुत बड़ा अच्छा चलता था। तो गवर्नमेंट को आप टैक्स भर रहे हो, उनसे फ़ायदा भी उठाओ, उठाना चाहिए, पैसे दे रहे हो आप। ठीक है, तो आपने क्या करा,
ये सारी चीज़ें देखी, पैन नंबर देख लिया, जीएसटी सर्टिफिकेशन देख ली, आपने अपना ये देख लिया कि आपने उसको, हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको ट्रेड लाइसेंस भी चाहिए होगा, आपको क्या कहते हैं, फायर सेफ्टी का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से, तो आपके पास एक पैटर्न हो जाएगा। मे बी आपको किसी की हेल्प ही नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो आप खुद कर पाओगे, तो आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, और आपके वही अवेयरनेस, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी का बटन दबाओ, सब कुछ हिंदी में आ जाएगा। हिंदी नहीं आती, इंग्लिश हो, बाहर से आए हो, तो इंग्लिश का बटन दबाओ। दूसरी बात, अगर आपको सैलून स्टार्ट करना है इंडिया में, तो मेन चीज़ होती है कि आप यहाँ के सिटीजन होने चाहिए हो। अगर मान लो आप सिटीजन नहीं हो, आप इटली से आए हो यहाँ पे काम करने के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर में 182 डेज यहाँ पे होने चाहिए, रुकने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते आप। अब मान लो कोई बंदा आया, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी, आप चला रहे हो 10 साल से सैलून, उसने आपका सैलून साथ में खोल लिया बहुत बड़ा, आप फाइट कर सकते हो उस चीज़ को और बंद करा सकते हो उसका सैलून, या उसके ऊपर केस कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो, पहचान सकते हो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। लोग इजी को करते हैं, मेहनत किसी को नहीं करनी, किसी का स्टाफ पूछना है कि बेटा आ जाओ, कितनी सैलरी है, क्या है, किसी को किसी और तरीके से करना है। तो अगर आप लीगली स्ट्रांग हो गए तो कोई भी तरीके से आपको हरा नहीं सकता कोई। जब मैंने सैलून स्टार्ट किया था तो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, क्योंकि मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो सैलून मार्केट है, मेरा भी साथ में बहुत सारे सैलून्स थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे को भी फेस करना पड़ा। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया कि ये आपका लाइसेंस कहाँ है, ये आपकी ये चीज़ कहाँ है, आपका ये प्रॉब्लम है। नोटिस भी आए, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल टाटा हो गई, बिरला हो गई, ये सारी कंपनीज के अंदर आपका एक लीगल लॉयर बैठा होता है, ठीक है। उनका काम यही होता है कि किस तरीके से दूसरी फर्म की गलतियां निकाले और वो अपने इंसेंटिव कमाए, दूसरा बंदा अपनी जिंदगी कमाए, ठीक है। तो जब वो अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका काम ये है। लेकिन हमें भी अपना काम पूरा करना है कि हम इन चीज़ों में फंसे ना। अब मेरे पास क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो डाली थी हेयर बोटॉक्स के बारे में, और एक फर्म थी जिसका नाम ही बोटॉक्स रिलेटेड था, बोटॉक्स रिलेटेड समथिंग समथिंग, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट लिमिटेड। अब उसने मेरे को नोटिस भेज दिया। अब मैं नया तो था नहीं, अब थोड़े टाइम हो गया था तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, मैंने कहा झेल लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो उन्होंने भेजा। अगर कोई स्मॉल मतलब एक नया बंदा होता वो डर जाता, ओ शिट ये क्या हो गया, वो बात करता उनसे, फिर वो कंपनसेशन देता। मेरे से मांगे थे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दो वरना कोर्ट में मिलो। अब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने वीडियो के डाली है, मैंने डिस्क्रिप्शन की फोटो ली, मैंने उसका जवाब भेजा उसको थ्रू अ लॉयर। उसके बाद वो चुप हो गया, उन्होंने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर आप एक इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो, आप वहाँ डर जाओगे। आप उनसे ये बोलोगे कि इस आगे से मैं वीडियो नहीं डालूंगा, आई एम सॉरी, आप मेरे को बता दो, 2 लाख नहीं दे सकता, 50,000 20,000 ले लो, मेरे को छोड़ दो। तो यहाँ क्या हुआ, आपके पैसों का नुकसान हो गया, आपने सफ़र कर लिया। लेकिन आपको नॉलेज है इस बारे में, तो आपने उसका जवाब दिया, आपने एक अच्छे लॉयर की हेल्प ली और आपने उनको जवाब दिया और वो मैटर वहीं क्लोज हो गया। It's very important to be educated Yes, basically yes. in every sector. थैंक यू। I mean, you're running your salon, but अगर as you also said, अगर नई knowledge होगी, they will shut down eventually. और आपको छोटी-छोटी legalities नहीं पता होंगी, definitely everything matters. Right. Karan, with regards to you, since you're the creative director of Tweak Salon, मैं थोड़ा different सवाल पूछना चाहूँगी. You work closely with the customers on a day-to-day basis. So what happens when you face legal backlash from them? कभी वो satisfied नहीं है या So there are certain things. जब हम बात कर रहे हैं लीगलिटी की, इंडिया में स्टिल देयर इज नो, एज वी ऑल नो, वी वर्क इन इंडिया, इतना हार्ड एंड प्रो रूल नहीं है कि वी कैन सू द क्लाइंट और क्लाइंट कैन सू अस, वाइस वर्सा ऑन एनीथिंग। अगर उनको सर्विस पसंद नहीं आया या कुछ भी है, सो इवेंचुअली क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो में चलता रहता है, बिकॉज वी टेंड टू कोरिलेट विद ईच अदर, क्लाइंट से बात करके समझाते हैं एंड देन इट सेटल्स डाउन। बट देयर आर, I mean, I've heard it's been more than 80-90s I've been into this industry. काफ़ी जगह से कुछ ना कुछ निकल के आती है बात, जो सुनने में आती है कि there has been a case कि बाल बर्न हो गए या कुछ हो गया, या
I've seen allergic reactions coming on the face due to color. अगर सेंसिटिव नहीं है स्किन और अगर है तो आपने कलर ऐसा लगाया कि एलर्जिक हो गया, तो क्लाइंट कैन sue us, but it depends. अगर हम strong हैं professionally in professional front, ऐसी जगहों पे अच्छे salons में I believe pan India नहीं होता. When the artist is educated, when the owner is educated, or owner is a businessman, he has kept the staff जो educated staff है, उस केस में ये cases I have never seen that. But definitely कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है because it's a hair. वो हर किसी का hair अलग अलग react and behave करता है. But if you are technically strong, these kind of things never come up. But clients definitely do challenge us in court or can challenge us. अगर बात हद से बढ़ती है, then we have to be the brand has to suffer So certain things. does it make sense for a salon to have legal counsel at hand, like retainership पे या consultants role में? I believe firstly there should be for coming generation I would say or coming years I would say there should be a license for a hairdressers in India. ये Okay. चीज स्टार्ट होनी चाहिए जो आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पैन इंडिया जो होना चाहिए देयर शुड बी अ सर्टिफाइड लाइसेंस. सो फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर अ ब्रांड, राइट? गीतांजलि हैज मोर देन 200 doors. सो आई आल्सो आस्क्ड आवर ओनर, समटाइम्स जब मैं बैठता हूँ उनके साथ, आई आस्क्ड देम कि हाउ डू यू फील जब आप हायरिंग करते हैं. आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन. आई मीन ही आल्सो हैज सैलून एंड we are crowd here which have more than one salon, two salon, or 100 salons or one salon, it doesn't matter. But hiring is something very very crucial. कि आप हायरिंग कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. हाउ वी आर हायरिंग अ पर्सन, फिर उसका नाउअडेज इंस्टाग्राम इज देयर, वी सी द प्रोफाइल, बट वी सी ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. Yeah. सो जो आपको देखता है वो होता नहीं है कभी कभी. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई थिंक फर्स्टली देयर शुड बी अ सर्टेन क्लॉ और होना चाहिए कि ट्रेडमार्क की वी हैव रजिस्टर्ड हेयर ड्रेसेस, क्वालिफाइड हेयर ड्रेसेस, उनका कितना डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन है. लाइक आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल. सो वहाँ पे डिग्री के हिसाब से कोर्स चलता है. लाइक इंडिया में भी आई थिंक VLCC एंड few of the brands are doing degrees for 2 years or 3 years. When we talk Yes. about short courses, like I am trained from L'Oreal India back in 2006. तो हमारा डिप्लोमा होता था which is a shorter course, 6 months. तो आप Yeah. 6 months में एक हेयर ड्रेसर ट्रेन कर रहे हैं, which is a good thing. But then on the other side 2 years में आप हेयर ड्रेसर ट्रेन कर रहे हैं overseas में. So there is a lot of difference in both the things. So certification of a hairdresser should be there ताकि हमें backlash client से ना हो. Client should feel safe in coming in and we should advertise our brand in such a way कि ऐसी कभी formality आए ना. But definitely अब I can never say कि हमने lawyers रखे हैं ये handle करने के लिए. Salons में ऐसा कुछ होता नहीं है कि lawyers. As and when जरूरत पड़े कर Yeah, सकते हैं. it depends, yeah, but जरूरत as such पड़ता नहीं है. But there can be cases I've heard. Okay, one very important question. हम सुबह से स्किलिंग और टैलेंट हंट पे ही बात कर रहे हैं. Yeah. तो राइट स्टाफ हायर करना बहुत ज़रूरी है. यू ऑल्सो मेड दिस पॉइंट जस्ट नाउ. तो जब स्टाफ को हम हायर करते हैं, खासकर हेयर ड्रेसर है Yes. जो हमारा स्टार होता है सैलून में, तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, Yeah. राइट? तो उसमें किस हद तक सैलून अपने आप को लायबिलिटी से बचा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ भी गलत होता है क्लाइंट के साथ, समथिंग एज सिंपल एज गूगल रिव्यू Yeah. कम मिल गया या गलत मिल Yes, गया, yes, yes. तो डू यू पुट इट इन द कॉन्ट्रैक्ट कि ये हेयर ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सैलून इन्वॉल्व नहीं है? Not as such, Hmm. because eventually the person is working for the brand. Yeah. The brand, he's representing the brand itself. तो वो brand का ही definitely सारा रहता है to take care of their customer. Yeah. Because we work for a brand, then definitely वो उन्हीं का रहेगा. But it's not mentioned in the clause as such. But that has to be taken care more professionally. जो taken care रखा जाता है professionally कि we train them in such a way और we take care of the trainings from starting from the scratch. या जब आते हैं so we note down कि किस level का training हुआ है, so क्या requirements है, so we work according to that so that the person is polished and yeah, depends upon the number of years the person has worked also. Fresher person and a Syrian artist में difference होता बट है. उस पर लीगल लायबिलिटी नहीं होगी. Not as such. और वन लास्ट थिंग, लेट मी जस्ट फिनिश विथ हिम क्विकली. क्या जब भी आप किसी भी लेवल पे किसी भी स्टाफ मेंबर को हायर करते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है? It's a very contradictory thing because काफ़ी जगह नहीं भी होता कॉन्ट्रैक्ट. जी. I've seen there are many places जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. It's upon the personal mutual understanding which works. Somewhere it's important also, but it's again very contradictory thing. I don't believe in a contract. There shouldn't be a foundation because artist is free mind. That's what I believe. Artist को जितना free mind रखेंगे उतना better है. अगर आपके system smooth है, अगर आपका process is smooth है legally, what they have been saying, and technically also, if you have created it such an environment in the salon that artist is feeling a good vibe to work in, and the entire environment is good to work, I don't think he'll be leaving you or any brand being owner. I mean, we also have my personal salon. We have 2 salons in Ludhiana, my own. So it comes at the same level. I've worked as a business person also. I've worked in the job profession also. Yeah. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से. But yeah, Okay. it's something important to create a good environment so that the person should feel safe to work in. Okay. Yes, Varun, you wanted. मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है. किसी भी हेयर ड्रेसर या किसी भी आर्टिस्ट को सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन बात करते हैं अगर हम लीगल टर्म्स में, तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, बैकग्राउंड चेक होता है स्टाफ का. जब भी आप किसी को रख रहे हो तो आप अपने जो आपके एरिया का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाइए और पुलिस वेरिफिकेशन कराइए. उससे आपको उनका बैकग्राउंड चेक पता लगेगा. सेकेंड चीज़, एक आर्टिस्ट को फ्री माइंड होना चाहिए, दैट इज़ ट्रू. लेकिन मैंने जो फेस किया था जब इनिशियल लेवल पे मैंने सलॉन स्टार्ट किया था, तो मेरा पूरा का पूरा सलॉन स्टाफ को एक अच्छे खासे ब्रांड ने ऑफर किया था मोर सैलरी एंड एवरीथिंग, ताकि वो उनके पास चले जाएं, उनके पास काम करे. तो उस चीज़ में मैंने क्या करा था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ साफ चीज़ें लिखी थी. अगर इस सलॉन की प्रॉपर्टी को कोई भी हार्म होता है तो वो आपकी सैलरी में से कटेगा. अगर 10 किलोमीटर के दायरे में अगर आप काम करते हैं किसी भी सलॉन में, तो 1 साल से पहले तो आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो कि लॉयर से बनवाई हैं और अपने स्टाफ से साइन करवाई हैं विद आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अब चेक. तो मेरे को लगता है अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ. आपने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था, और अब हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए, तो हम फ्री माइंड होके जा सकते हैं कि हमारे पीछे कोई भी स्टाफ हमारा किसी कंपटीशन के पास नहीं जाएगा इन टर्म्स ऑफ 10 किलोमीटर के, और वो एक अच्छा स्पैन होता है. तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बंदे को ये चीज़ करनी चाहिए. इससे आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होगे और खुल के काम कर पाओगे. पुलिस वेरिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, अ प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग, अ प्रॉपर वे ऑफ बायोमेट्रिक्स, अ प्रॉपर वे ऑफ वर्क से क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाओगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो काम चलेगा. और आप अगर अपने सैलून को हाइट्स पे देखते हो कि हाँ भाई हमें इस लेवल पे टच करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, फ्रॉम द स्क्रैच टू द टॉप. Thank you. Cool. Dipali, coming to you, I have 2 questions for you. So you take them with the flow. Number 1, एक कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे रजिस्टर करना पड़ता है. Is that registration enough to own that name? क्या वो रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क सेम है? सेकेंडली, मैं मुंबई से हूँ, मुझे मुंबई में सैलून खोलना है जिसका नाम मुझे ताज रखना है, क्या मैं रख सकती हूँ? Okay, so question by question लेते हैं. The first question was, I'm sorry, what was Registration and trademark. Yeah, right. So in very simple terms, नहीं. If you've registered a company name, इसका मतलब ये नहीं है कि automatically वो नाम आपका हो जाएगा. अगर आप कंपनी रजिस्टर पे जाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, इट्स पब्लिकली एक्सेसिबल, कोई भी देख सकता है. तो अब वहाँ जाके अगर आप देखेंगे तो सेम नाम की बहुत सारी कंपनीज होंगी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक, LLC, LLP करके सेम नाम से. देयर वुड बी टन्स ऑफ कंपनीज, राइट? जस्ट बिकॉज आपने कंपनी रजिस्टर कर ली है उस नाम से. कंपनी रजिस्टर वाले यूजुअली दे वोंट बी चेकिंग कि अच्छा इस नाम से कोई कंपनी है पहले से रजिस्टर करने से पहले, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द सेम एज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन. तो ये क्वेश्चन कई बार क्लाइंट से भी आता है कि अच्छा ये हमारा मार्क है, हमारी इस नाम की कंपनी है एंड अब हमें ये नाम रजिस्टर करना है. अभी जस्ट टेल देम कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो आपका नाम आ रहा है, दैट डॉक्यूमेंट डज नॉट सफाइस. You will require a separate trademark registration.
अब ट्रेडमार्क्स में क्या है, there's two things, आप अनरजिस्टर्ड भी छोड़ सकते हो, बट देन फिर आपके सेफगार्ड्स चले जाएंगे. सो अगर जस्ट एज ही सेड कि अगर आपने यू पिक्ड अ नेम, आपने इनिशियली अपना बिजनेस शुरू कर दिया है एंड देन इवेंचुअली कोई आता है एंड बोलता है कि अच्छा नहीं ये नाम तो मेरा नाम है, तो फिर देन यू हैव नो सेफगार्ड. या फिर कोई फ्यूचर में आपके बगल में कोई किसी ने सैलून खोल लिया विद द सेम नेम, राइट, आप यू कैन नॉट टेल देम ऑफ कि नहीं ये मेरा नाम है, आई हैव राइट्स ओवर इट. You'll have some common law rights if you've been using it for a long time, but that also आपको proof करना पड़ेगा कि अच्छा नहीं this is my name, I have adopted it, business में मेरे पास से है ये बहुत टाइम से. Another important point that comes here, जब आपने नाम conceptualize किया है at the very initial stage, उस stage पे अगर आपने for example आपने किसी को advertisement के लिए hire किया, आपने किसी को उसका logo बनाने के लिए hire किया, you've made some social media post about it, कुछ भी, वो जो इनिशियल यूज है आपका, आप प्लीज उसको सेव करके रखिए. एनी डॉक्यूमेंटेशन जिसमें ये पता चल रहा है कि अच्छा ये नाम आपने इस डेट से इस्तेमाल करना शुरू किया था. तो व्हाट हैपेंस इज जब आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करते हैं, यू कैन बैकडेट इट आल्सो. तो ट्रेडमार्क में फर्स्ट यूजर का प्रिंसिपल आता है यहाँ पे कि किसने पहले इसको यूज करना शुरू किया था. तो फॉर एग्जाम्पल कोई नाम है एंड यू अडॉप्टेड अ वेरी सिमिलर मार्क टू इट, राइट. अब यू नो ऐसा तो है नहीं कि देयर आर लाइक इन्फिनिट नंबर ऑफ नेम्स दैट यू कैन कम अप अनलेस आपने कुछ बिल्कुल ही अलग बना लिया हो. अ लॉट ऑफ टाइम्स कुछ ना कुछ लाइक एक्सटेंट पे ओवरलैप हो जाता है, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो सेम चीज़ है, राइट. तो इनिशियली आपने जब भी कोई ट्रेडमार्क अडॉप्ट किया है कि ये मेरे बिजनेस का नाम होने वाला है, ये मेरे ब्रांड का नाम होने वाला है, ये मेरी प्रोडक्ट लाइन का नाम होने वाला है, जस्ट प्रिजर्व उस वो जो भी आपका इनिशियल यूज है उसे बचा के रखिए. बिकॉज फ्यूचर में भी इन केस आपने कोई सैलून लॉन्च किया फॉर एग्जांपल, अभी यू हैवंट लॉन्च द प्रोडक्ट लाइन, इन द फ्यूचर यू प्लान टू डू इट कि फ्यूचर में मैं शैम्पूज या बॉडी लोशंस या एनीथिंग आई टेक इट आउट अपने सैलून के नाम पे, राइट. पर आपने इनिशियली कॉन्सेप्चुअलाइज पहले कर लिया था. तो आप जब उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे फ्यूचर में जाके, तो यू कैन बैक डेट इट ऑल्सो कि नहीं मेरा राइट तो उस डेट से 3 साल पहले से मेरा राइट एग्जिस्ट कर रहा है इस चीज में. सो दैट विल हेल्प यू ओवरकम एनी मार्क्स दैट हैव बीन रजिस्टर्ड इन द मीन टाइम. उस मीन टाइम में अगर किसी और ने भी वो नाम ले भी लिया है, इवन देन यू कैन आर्ग्यू नहीं मैंने पहले लिया था. सो दैट इज द आर्ग्यूमेंट दैट कैन गो. सेकेंडली एज यू सेड कि ताज इफ आई गेट, सो ट्रेडमार्क्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, सो आई ऑल्सो हैंडल दिस इन माई फर्म. वेल नोन मार्क का कॉन्सेप्ट होता है. व्हाट अ वेल नोन मार्क इज कि एक ब्रांड दैट हैज बिकम सो यूबिक्विटस, मतलब कि आप नाम बोलो एंड पब्लिक विल अंडरस्टैंड. मैं लैक्मे बोलूँ, you know what Lakme is. I'll say L'Oreal, you know what L'Oreal is. I don't have to explain what their field of business is, right? So well known mark का मतलब होता है एक नाम जो इतना पॉपुलर हो चुका है कि you say the name and the public will know कि आप किस ब्रांड की बात कर रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसके प्रोडक्ट क्या है. एक बार कोई मार्क वेल नोन बन गया, फॉर एग्जाम्पल आई से गीतांजलि इज प्रीटी मच इन वेल नोन बुक्स. तो एक बार कोई मार्क वेल नोन बन गया, राइट, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एनी अदर पर्सन टू अडॉप्ट इट इन एनी कैपेसिटी. सो ट्रेडमार्क्स में यूजुअली आपका नाम विल बी लिमिटेड किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए या किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए. आप सैलून चला रहे हैं, उसका सेक्शन होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है 44, उसके अंदर सारी सैलून वाली सर्विसेज आती हैं फॉर एग्जाम्पल. तो आपने कोई नाम रजिस्टर कराया, इट विल बी रजिस्टर्ड उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए. अब आप ये नहीं बोल सकते कि उस नाम से कोई दूध नहीं बेच सकता, राइट. दिस इज द नॉर्मल प्रिंसिपल हाउ इट अप्लाइज कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, इसीलिए अगर आप जाएंगे भी तो देयर आर सेम नेम्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट कैटेगरी अलग हो गई, सर्विस अलग हो गई, राइट. तो यू कैन नॉट मोनोपोलाइज इट सारी सर्विसेज के लिए, सारे गुड्स के लिए. बट एक बार कोई नाम वेल नोन हो गया, उसके बाद इट इज प्रोटेक्टेड सारी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. तो एट दैट पॉइंट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. जैसे ताज है फॉर एग्जांपल, राइट, इट्स अ वेल नोन नेम. आई से ताज, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ताज एक ऐसा नाम है दैट हैज बिकम सिनोनिमस विद उनका होटल्स एंड यू नो F&B. सो उस मार्क को फिर यू कैन नॉट अडॉप्ट. But of course, if there is some other mark that is like being similarly used for a particular set of goods, you know कि अच्छा इस चीज के लिए ही स्पेसिफिकली इसका मार्केट है, एंड जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपका उस गुड्स या उस सर्विस से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक. तो देन यू कैन थिंक अबाउट रजिस्टरिंग दैट.
Okay. So due diligence again, it comes into play here for sure. Right. My next question is to both of you. Franchisee model के बारे में आपका क्या कहना है, especially जो उसके legal aspects होते हैं, क्योंकि हमारे audience में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि franchisee ली जाए, तो उसके legal repercussions क्या होते हैं? Yes. फ्रेंचाइजी की बात करते हैं हम, तो फ्रेंचाइजीज का ये मतलब होता है कि एक वेल नोन ब्रांड है, अब आप उसका नाम लेना चाहते हैं। सब फ्रेंचाइजी के अपने अपने अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर फ्रेंचाइजी सपोर्ट देता है इन्वेस्टर को जो उनकी फ्रेंचाइजी लेता है। कुछ लोग परसेंटेज लेते हैं प्रॉफिट का, कुछ लोग अपना सेट कर लेते हैं कि आप हमें इतना अमाउंट देंगे हमारे नाम का, और उसके बदले में क्या होता है, जो भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो सारी A to Z चीज़ें उनको करके देंगे इन टर्म्स ऑफ लीगल, क्योंकि वो करते आ रहे हैं, ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। अब फ्रेंचाइजी के लिए भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पूरी करनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ें थरली, कि उसके अंदर वो किस किस तरीके से आपको सपोर्ट देंगे और वो अपनी क्वालिटी ऑफ लेवल को सेम कैसे रखते हैं जब वो आपको फ्रेंचाइजी देते हैं अपने सैलून के साथ साथ। Okay. Yes, it is Karun? something very important to read the document properly, क्योंकि फ्रेंचाइजी के मॉड्यूल में कई बार ये भी होता है कि ओनर ने फ्रेंचाइजी दे दी, देन दे बिकम लेट बैक कि हमारा इतना ट्रेनिंग में सपोर्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोको मॉड्यूल इज़ वेरी इन नॉट नाउ, अभी काफ़ी साल से चल रहा है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, बॉम्बे में भी चल रहा है, नॉट इन सैलून इंडस्ट्री बट काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग सेक्टर्स में चल रहा है, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। सो उस केस में समटाइम्स कंपनी शो मोर एफर्ट्स कि ये हमारा कंपनी ओन्ड सैलून है, सो वी ऑपरेटेड एट अ बेस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, लीगल सपोर्ट एंड एवरीथिंग। बट डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंचाइजी, कुछ चीज़ें हमें लीगलिटी की स्टार्टिंग में रीड करनी चाहिए व्हेन वी रीड द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। सपोर्ट मिलेगा, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रांड बनने के बाद बना तो कोई भी लेता है पैसे इकट्ठे करके, बट उसको चलाना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेक इट कंसिस्टेंट फॉर ईयर्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो वो कंसिस्टेंट रखने के लिए इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी विच वी डिलीवर। सो ब्रांड का जो नाम बना है XYZ, वो सेम कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, दैट इज समथिंग द फ्रेंचाइजी पार्टनर और द ओनर शुड ऑल्सो टेक केयर, कि उनको भी क्या इतना नॉलेज है कि हम इस चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि हमारे ब्रांड में वो सपोर्ट हमें मिल रहा है कि नहीं। सो टेक्निकली दोनों तरफ बैलेंस इक्वल हो तो इट रन्स बेटर। Alright. Just you want to add? जब फ्रेंचाइजी हम किसी से भी लेते हैं, कोई भी ब्रांड होता है XYZ, जब हमसे फ्रेंचाइजी लेते हैं हमें ये समझना है कि जितनी भी डीलरशिप है स्पेशली वो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक भी आए। आपने फ्रेंचाइजी ली, आपने फ्रेंचाइजी फीस दी और उसके बाद आपको सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, बोल दिया जी स्टार्ट कर लो, अब हमारा हो गया काम। उसके बाद क्या सफ़र होता है जो इंसान करता है कि वो इन्वेस्टर है, वो इन इंडस्ट्री के नहीं है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है किससे अपना मटेरियल लेना है, कहाँ से परचेज करना है, कहाँ पे अच्छा मार्जिन मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो अच्छी कर सकते हैं जिससे मार्जिन लेवल बढ़ेगा, किस तरीके से हायरिंग करनी है, किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट देखना है, किस तरीके से एक्सपेंस मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों की मेरे को लगता है एक शॉर्ट बेसिक कोर्स उनको उनसे करना चाहिए और ये उनका हक भी बनता है जो कि कोई नहीं करता। वहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप कर लिया। अब मैं कहता हूँ इन्वेस्टर हो गया और एक आर्टिस्ट हो गया। इन्वेस्टर वहाँ मार खा जाता है जहाँ वो सैलून को नहीं समझ पाता, आर्टिस्ट वहाँ मार खा जाता है जहाँ उसको नॉलेज नहीं होती इन टर्म्स ऑफ लीगल। अगर ये एजुकेट होगा, ये अच्छे से कोर्स करके पढ़ के आज सारी चीज़ें करेगा, इसका सैलून फेज नहीं होगा। और जो इन्वेस्टर है अगर वो अच्छे से बिजनेस को समझेगा, थोड़ा सा लर्न करेगा, ज़रूरी नहीं है काम समझे, मटेरियल एवरीथिंग, कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें, किस तरीके से स्टाफ काम करता है, आर्टिस्ट की इच्छाएं क्या होती हैं, वो किस तरीके से उसका माइंडसेट वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के लिए एक शॉर्ट कोर्स कर सकता है वो जिस भी फ्रेंचाइजी से वो फ्रेंचाइजी ले रहा है, क्योंकि आप एक हेफ्टी अमाउंट पे कर रहे हो उनको। ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल लॉरियल के बिजनेस कोर्सेज होते हैं, कभी कभी देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम ओवरसीज ऑल्सो, जिसमें ब्रांड अपने ओनर्स फॉर एग्जांपल पार्टनर्स एंड जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनको और मैनेजर्स को भेजते हैं, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड द एस्थेटिक्स ऑफ बिजनेस, कि
हाँ, अगर ओनर को फ्लोर आर्टिस्ट नहीं है, फ्लोर का नॉलेज नहीं है, तो दे शुड अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द बिजनेस. सो ये मॉड्यूल एक लॉरियल ने भी स्टार्ट किया है. इट्स बीन मैनी ईयर्स. कुछ ना कुछ सेमिनार्स होते हैं ऐसे जिसमें ओनर आर्टिस्ट की बजाय मैनेजर्स एंड फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को भेजते हैं, which is again what he said. Right. Very good So thing. education on that level is also very Yes, important. and thanks to you also for this kind of platform in which everyone can, we can discuss our thoughts and people can ask questions. So Exactly. something- So yes, it is time for people's questions. I'll come to you. एक पीछे सवाल है, वो लेके आते हैं. Can we have the mic here, please? हेलो मैम. एक्चुअली अभी बात हुई कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब हम स्टाफ को रखते हैं, बट इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली हम, जैसे सर ने कहा कि हम किसी को बॉन्ड करके नहीं रख सकते, बट हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब हम स्टाफ को एक अच्छे लेवल पे ट्रेन करते हैं तो उनको कहीं ऑफर अच्छा आता है तो वो छोड़कर चले जाते हैं. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है. लेकिन वहाँ पे हमें टर्म्स और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमें तो उसी में बेनिफिट है ना कि हम उसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे रखते हैं, तो बट वहाँ पे हमारे इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और टर्म्स और कंडीशन क्या होनी चाहिए बेसिकली. देखिए, ये वाली प्रॉब्लम तो ये सारी इंडस्ट्रीज में सेम प्रॉब्लम है. इफ आई सी लॉ फर्म्स के साथ में भी बहुत प्रॉब्लम है. पूरे डिपार्टमेंट्स उठ के दे विल गो टू डिफरेंट फर्म्स. तो एसेंशियली देयर इज नो वे कि आप किसी को रोक के रख लो कि अच्छा नहीं तुम नहीं जा सकते. यू कैन पुट समथिंग, आप कुछ डाल दो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिससे ये होगा कि अच्छा दे हैव टू पे समथिंग, और अगर आप इतने टाइम से पहले छोड़ के चले गए या एनुअल बोनसेस से पहले चले गए तो लाइक दे हैव टू गिव देयर बोनस बैक, और ये सब चीजें, राइट. आप बट एसेंशियली देयर इज नो, आप नॉन कॉम्पिटे जो इन्होंने अभी बताया कि 10 किलोमीटर के अंदर आपने डाल दिया कि आप नहीं जा सकते, राइट. दैट इज समथिंग, एक नॉन कॉम्पिटे का प्रिंसिपल होता है, वही नॉन कॉम्पिटिशन थिंग कम्स इनटू प्ले कि आप सेम इंडस्ट्री के लिए काम, बट दैट इज ऑल्सो स्कोप इज लिमिटेड. वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है कि अच्छा नहीं, दिस इज रिस्ट्रिक्टिंग माई चैलेंजेस, क्योंकि अगर वो हेयर ड्रेसर है तो वो सैलून नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, राइट. सो इन ये सब चीजें कम इन टू प्ले. अब इसमें बेस्ट केस सिनेरियो यही है. अब कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाती है. कॉन्ट्रैक्ट में ऑफकोर्स छोटे छोटे सैलून्स में वर्बल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप मेरे पास काम करो, आपको इतना पेमेंट होगा. यू डोंट रियली गो इनटू डेप्थ विद लाइक लीगल चीजें कि अच्छा नहीं कोई बड़ा सा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. फिर भी इट इज सजेस्टेड कि अगर आपको जनरली लाइक इफ यू प्लान टू हायर अ कपल ऑफ एम्प्लॉयज, इट्स गुड टू हैव एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फिर आपके लिए भी टर्म्स क्लियर है और उनके लिए भी टर्म्स क्लियर है. क्योंकि बाद में अगर कुछ इशू होता है वो जाके बोल देगा इन्होंने मुझे ऐसे कहा था, आपके पास कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, यू डोंट नो, यू कांट प्रूव कि अच्छा मैंने ये चीज बोली थी या उसने. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हेयर से. उसमें फिर अब यही प्रूफ करने में कि आपने क्या बोला था और उन्होंने क्या बोला था एंड एक्चुअली क्या डिसाइड हुआ था, इसी में आपका सारा टाइम रिसोर्सेज चला जाएगा. सो दैट बिकम्स अ ह्यूज इशू. सो ये चीज सजेस्टेड रहती है कि आप राइटिंग में रखें. आप उसके अंदर कुछ नॉन कॉम्पिटेटिव वाली चीजें डाल सकते हैं कि अच्छा नहीं, जैसे 10 किलोमीटर के अंदर आप मत जाइए, राइट. सो आप यू कैनॉट स्टॉप समवन, बट ऑब्वियसली आप डिटर कर सकते हैं. अब इसमें आई थिंक मेन चीज यही आती है कि हाउ यू कीप योर एम्प्लॉय हैप्पी. आई थिंक दैट इज द प्राइमरी थिंग. बाकी आई थिंक अक्रॉस ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ सैलो स्पेसिफिक प्रॉब्लम. आई टेल यू दैट. पोचिंग का भी आई एम श्योर इशू यहाँ पे भी होता होगा जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में होता है, राइट. अब उसमें बस यही है कि यू कैन हैव अ डिस्कशन विद योर एम्प्लॉय एंड मेक द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट टू रिटेन देम. स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आपको पता है कि लाइक ही इज वेरी वैल्यूएबल आपके उसके लिए, तो द बेस्ट केस सिनेरियो यही है यहाँ पे कि यू कीप योर एम्प्लॉय हैप्पी एंड यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके एम्प्लॉय के बीच में कि आप क्या दे रहे हैं ना आपका एम्प्लॉय आपको क्या दे रहा है. From a legal perspective, definitely that is it. बाकी फिर of course personal fronts में तो I guess it depends on case to case. इसमें एक और चीज़ है व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द इयर्स. जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के बाद एवरीवन्स बिजनेस गॉट सफर्ड. सो काफ़ी सारे ब्रांड हैं जहाँ पे आर्टिस्ट इफ इज वर्किंग, सो वो शेयरिंग बेसिस पे वर्क कर रहा था. लाइक ही वाज नॉट गेटिंग द सैलरी, बट वो जितना काम कर रहा था, सो ही वाज गेटिंग अ परसेंटेज. सो दैट इज हाउ ही वाज वर्किंग. सो वो आई एम नॉट टॉकिंग, आप ही का थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर है ये कहीं ना कहीं कमिंग इनटू दैट, कि वो पर्सपेक्टिव में भी आर्टिस्ट छोड़ने का नहीं सोचता, बिकॉज अगर उसके पास क्लाइंटल है, ही इज वर्किंग,
आई थिंक ही इज पुशिंग हिमसेल्फ मोर, क्योंकि जितना वो काम करेगा उतना ही वो शेयर करके देगा और उसको भी ज़्यादा आएगा. सो दिस इज समवेयर अनदर थिंग आई सीन लॉट ऑफ ब्रांड्स वर डूइंग दैट. मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप जब भी सलोन इंडस्ट्री की बात करो, जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं वो थोड़े से, आपको पता है, देख देख के सीखने वाले होते हैं, और ऐसे नहीं होते कि वो पहले से ही पढ़ लिख के पूरी डिग्री लेके फिर इस चीज़ के अंदर आ रहे हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप रख रहे हो और सीधा बोल रहे हो ये साइन कर, वो कहेंगे नहीं मैं जा रहा हूँ. अगर आप उसको थरीली, वो आया फर्स्ट डे, आपने पूरे स्टाफ के साथ इंट्रोडक्शन कराया उनका, जैसे एक कंपनी काम करती है, ऑफर लेटर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर बनाने के बाद उनको दे दिया, उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे, आपने पुलिस वेरिफिकेशन कराई, सारी चीज़ें सिस्टम में होंगी ना, वो कहीं ना कहीं समझेगा ये रूल है इस ऑर्गेनाइजेशन का. फिर जो आपके पुराने फेवरेट प्लेयर हैं जो आपके साथ अटैच्ड हैं, सबसे पहले उनको दिखाने हैं कॉन्ट्रैक्ट, देखो जी इन्होंने साइन कर रखा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. उसके बाद आप उसका जब ट्रस्ट गेन कर लोगे, वो उस चीज़ को साइन करेगा और समझेगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है, मैं एक अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट होने वाला हूँ, तो मेरे को ये चीज़ साइन करनी चाहिए. अब जब उन्होंने साइन कर दिया, आप उनको साइन करने से पहले बताओगे कि देखो हम इसलिए बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि हम आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वो कहेंगे कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप बोलेंगे हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे जो कि बाकी सैलून नहीं कराते. ट्रेनिंग्स में आप जाएंगे लेकिन हम आपकी लीव्स कट नहीं करेंगे, हम आपको उसके भी पैसे देंगे, आपको एजुकेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्लाइंटों के सामने आपको खुद हम रेफर करेंगे कि ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे क्रिएटिव हैं, ये इस चीज़ में अच्छे हैं, आपके क्लाइंट बनेंगे, आपको कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती, यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है और हम आपको बहुत अच्छे से रखते हैं. और सेकंड चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो कि सारे सैलून ओनर्स गलती करते हैं, टू फ्रेंडली हो जाते हैं अपने स्टाफ के साथ. तू मेरा बच्चा है, तू मेरा भाई है, तू मेरा वो है, तू इतने सालों से मेरे साथ है, आजा चल खाना खिलाता हूँ, आजा चल तेरे साथ यहाँ चलता हूँ. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रॉन्ग है और गलत है. आपने सैलून में काम करवाया, वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से रखना है, समझना है, लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं करनी कि कभी वो आपके लिए ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाए. वेरी इंपॉर्टेंट. एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अगर आप लाइन क्रिएट कर दोगे तो वो हर चीज़ के लिए रोता हुआ आपके पास नहीं जाएगा, वो मैनेजर के पास जाएगा, वो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, और एक रिस्पेक्ट और एक सीनियरिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी उस इन्वायरमेंट में. फिर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होगे जहां आपकी ज़रूरत होती है होने की, तो आपका स्ट्रेस लेवल गया, टाइम बच गया, आप जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देने की कैपेसिटी रख सकते हो, और टाइम मिलेगा आपको कि जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो, ना कि इन सारी चीज़ों में. कॉन्ट्रैक्ट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले दिन से रखा था, नहीं रखता तो शायद यहाँ ना बैठता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन था जहाँ मैं था, और मेरे को पता है किस किस तरीके से मैंने फेस किया और कैसे निकला. तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है. आप जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो ना, कभी कभार वही आपको डिच कर देता है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आप हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हो. लेकिन ट्रस्ट गेम नहीं, ये आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में ये सब नहीं, रिस्क नहीं लेना, प्रोफेशनल चलना है. थैंक यू. उन्नति जी, माइक पीछे चला गया है, एक सवाल वहाँ से ले लें. यस. Hi, ma'am. My question is to you is like most of the time we have seen people what they do, they play very smartly. Like for example, if we take the name called Gitanjali, so the other investor what they do, they make the same billboard and their own salon also. The interior will be the same, but what will do? They will play with the few alphabets with the same brand. Like in Gitanjali, they do double E, if I'm not wrong. And if I use I with the two alphabets, rather of the two alphabets, I just need to use one alphabet, and the sound will be the remain same. So, do we have any legal action for that particular sort of thing? Yes. So now again we are coming back to why trademark registration is important, right? अगर आप बहुत टाइम से कोई मार्क यूज कर रहे हैं, जनरली अगर आपने रजिस्टर नहीं भी करवाया है, यू विल हैव राइट अंडर कॉमन लॉ कि आप जाके उससे बोल सके कि ये मेरा मार्क है, राइट? बट उसमें यू हैव लिमिटेड रिकोर्सेस. एक तो आपका मार्क रजिस्टर्ड नहीं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रूव कि इट्स योर मार्क, राइट? यू विल हैव टू एस्टैब्लिश कि ये मेरा मार्क है, मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरी ऐसी गुडविल रेप्यूटेशन है, एंड देन उसके बेसिस पे आई एम आस्किंग दैट पर्सन नॉट टू यूज इट. Gitanjali is a very famous brand. Let's say any, yeah. No, but in case, I mean, Gitanjali, of course, it must be registered. Yeah. But the sound similar. Yeah, I'm getting to it. So, आप जैसे आपने कहा कि गीतांजलि में I और गीतांजलि double E, right? Pronunciation is the same.
अब कोर्ट्स में या फिर इवन ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री में जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं तो मार्क्स दो बेसिस पे एग्जामिन होते हैं जो ऑब्जेक्शन आता है रजिस्ट्रेशन का। पहला बेसिस होता है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स, जिनमें दो चीज़ें मेनली होती हैं कि या कि आपका मार्क डिस्टिंक्टिव है। फॉर एग्जांपल मैंने शैम्पू का नाम राहुल रख दिया फॉर एग्जांपल, राइट। अब राहुल इज नॉन डिस्टिंक्टिव। इफ आई you can't easily like go to a shop and be like कि अच्छा आप राहुल देखोगे तो you can immediately distinguish it from other products, right? तो पहला वो बेसिस होता है जिसपे वो चेक करेंगे कि डिस्टिंक्टिव है कि नहीं, कि कंज्यूमर मार्केट में जाके आपका प्रोडक्ट देखता है या आपकी सर्विस देखता है, आपका सैलून देखता है, उसको इमीडिएटली ही कैन डिफरेंशिएट इट किसी दूसरे सैलून से। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। मैं शैम्पू का नाम शैम्पू नहीं रख सकती। मैं शैम्पू के लिए इफ आई ट्राई टू रजिस्टर द नेम माउंटेन, मे बी इट विल गो थ्रू बिकॉज माउंटेन एंड शैम्पू कोई लेना देना नहीं है दोनों चीजों का, राइट। सो यू कैन गो फॉर अ आर्बिट्रेरी नेम, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। अब सेकंड क्राइटेरिया जो ये आया आपका रिलेटिव ग्राउंड्स पे, उस पे व्हाट दे डू इज दे एग्जामिन कि अच्छा ऐसा कोई मार्क है ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है विच साउंड्स सिमिलर और लुक्स सिमिलर और स्पेल्ड सिमिलरली और द डिजाइन इज सिमिलर। अब उसमें व्हाट दे एग्जामिन वो उसको ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे। अब दिस इज अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल लॉ का, नॉन डाइसेक्शन, कि आपको मार्क को तोड़ के नहीं देखना है। अब मेरा मार्क है गीतांजलि, अब किसी के पास अंजलि मार्क है तो आई कांट बी लाइक अरे वो इज इनफ्रिंजिंग माय मार्क, नहीं। तो गीतांजलि गीतांजलि जैसे आप कह रहे हैं, आप ओवरऑल देखेंगे। अगर मैं दो शॉप्स देखती हूँ एग्जैक्टली सेम डिजाइन है गीतांजलि का, जस्ट आई और ई का डिफरेंस है, एंड यू सी इट फ्रॉम अ नॉर्मल कंज्यूमर, नॉट लाइक आप बड़ी सिटीज के कंज्यूमर्स वी ऑलवेज थिंक अबाउट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, बट ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कंज्यूमर्स जो है वो उतना दिमाग नहीं लगाएगा। कोई जाते हुए देखते दिल भी लाइक अच्छा गीतांजलि, ये तो उन्हीं का गीतांजलि होगा, राइट। This is what my question all about. या सो द फैक्ट कि वहां पे कंफ्यूजन का चांस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ एवरेज कंज्यूमर, नॉट अ वेरी हाईली लर्नड कंज्यूमर, कोई सिंपल कंज्यूमर जो मतलब बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कंपेयर। वो जाएगा दुकान में जाके तो ही वोंट कंपेयरिंग कि अरे आई है ई है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा। ही जस्ट सी कि अच्छा गीतांजलि है, दिखने में भी सिमिलर है, स्पेलिंग में भी सिमिलर है, सैलून है, राइट। सो वहां पे सिंस देयर इज अ डिसेप्शन का चांस एंड अ वेरी हाई चांस, तो देन इट विल नॉट गो थ्रू। सो ये जो लॉ का प्रिंसिपल है कि they'll एग्जामिन कि दोनों मार्क्स के बीच में डिसेप्टिव सिमिलैरिटी है कि कंज्यूमर देख के कंफ्यूज हो जाए। इस चीज का अगर चांस है तो यू विल द रजिस्ट्रेशन विल नॉट गो थ्रू। उसके अलावा ऑब्वियसली जो मैंने पहले भी बताया था, आप अगर बाई चांस गलती से आपका मार्क हो गया, एक्सेप्ट ठीक है, एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया, कुछ आपने उसको कुछ ऐसे तरीके से लिखा था कि आपने जी रिवर्स कर दिया, ठीक है, आपने जी रिवर्स कर दिया, बीच में कुछ लेटर्स ऐसे डिजाइन बना दिए कि इट्स नॉट एक्सप्रेसली बीइंग रेड एज गीतांजलि, बट लेकिन आप उसको यू गोइंग टू एडवर्टाइज इट एज दैट ओनली। उसमें फिर 4 महीने का पीरियड होता है जो जर्नल आती है, जो मैंने बताया था, जैसे पब्लिकेशन होता है, उसमें यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू अपोज इट। तो अगर आपका यू आर दी एक्चुअल ओनर ऑफ दैट ब्रांड एंड आपको पता है कि ये जो नाम है ये मेरे उससे लिया गया है, इसका ड्रेस सिमिलर है, इसका अडॉप्शन सिमिलर है, द कलर स्कीम इज सिमिलर, ओवरऑल आपको देख के लग रहा है कि प्रीटी श्योर मेरे ब्रांड से लिया है, ठीक है। तो जब आपको वो चीज का श्योरिटी हो जाती है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइल एन ऑपोजिशन बोल के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में ही कि दिस इज माय मार्क, ये मेरा एविडेंस है कि आई हैव बीन यूजिंग इट इस टाइम से, मेरे पास ये। अब इन केसेस में भी रजिस्ट्रेशन इज हेल्पफुल बिकॉज आप दिखा सकते हो कि अरे मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, राइट। नहीं तो अदरवाइज अगेन इट बिकम्स आपका जो आपने कहा एंड जो उसने कहा, फिर अगेन इट गोज इनटू दैट। तो ये सब चीज़ों को फैक्टर में रखते हुए इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि इट्स नॉट ओवरलैपिंग विद एनी अदर रजिस्ट्रेशन। ये छोटा मोटा ट्वीकिंग इफ यू डू, जैसे अगर आपका कोई वर्ड मार्क है, फॉर एग्जाम्पल योर मार्क इज कैराटेस, ठीक है, इफ देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड कैराटेस, राइट। अब मैं कैराटेस को कैराटीज कर दूं, डज नॉट मीन इट विल गो थ्रू। अगर इफ आई एम सेलिंग, इफ देयर इज अ पॉपुलर ब्रांड कैराटेस हेयर प्रोडक्ट्स के लिए, और अगर मैंने उसका नाम बदल के कैराटीज करके आई एम जस्ट सेलिंग सम लोकल प्रोडक्ट, वो इन्फ्रिंजमेंट की तरह ही काउंट होगा। अब इसमें देयर आर मल्टीपल रिकोर्सेज। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है, सबसे आसान तरीका होता है सीज एंड डिसिस्ट भेजना। आप उनको नोटिस भेजते हैं कि मेरे पास इसके राइट्स हैं, यूज करना बंद कर दो,
आपके पास 10 दिन है, आपके पास 15 दिन है, दैट इज लाइक द इजीएस्ट वे टू डू इट, अगर आपको लीगल पचों में नहीं पढ़ना है तो. आई नो अ लॉट ऑफ टाइम स्मॉल सैलून्स के साथ में ये इशू होता होगा कि अच्छा नहीं, यू डोंट हैव अ लॉयर ऑन अ रिटेनर, या यू डोंट वांट टू यू नो गो इनटू दैट होल थिंग. तो उसमें सबसे इजी चीज होता है, आप किसी भी लॉयर के पास जाके यू कैन हैव देम सेंड अ सीस एंड डिजिस्ट कि ये मेरे राइट्स हैं. फिर अगेन इफ इट एस्केलेट्स, आपका यू हैव सम बिग बिजनेस राइट दैट इज गेटिंग अफेक्टेड, तो उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन गो टू कोर्ट ऑल्सो. कोर्ट में भी रिसोर्सेज होते हैं, आप वो रिसोर्सेज ऑल्सो चेंज. अगर आपका मार्क रजिस्टर्ड है तो वो इन्फ्रिंजमेंट में चला जाएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पासिंग ऑफ में चला जाएगा. तो ये सब चीज़ें भी ऑल इन्फ्रिंजमेंट इज अ स्ट्रॉन्गर टूल ऑब्वियसली. तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड जस्ट सिंपल चेंजेस टू अ मार्क डज नॉट मीन कि यू आर सेफ. तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी से इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं तो देन ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अच्छा नहीं, डज इट लाइक overall does it sound too similar to that mark, so wo also you have to take into consideration. Thank Right. you. Yes. Can we have the mic here, please? Okay, this is the last question, so we'll just make it quick. यहाँ पे शिवानी. So it was wonderful conversation between all three of you. इसका ये नतीजा निकला कि कोई भी वरुण या हमारे पास करण हो, सबको दीपाली चाहिए लाइक दैट होना चाहिए. बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ माई डॉटर इज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ. When we are doing anything in 2002, we registered our academy and salon both in section 42 and 44, what you said right now. Wonderful. Yeah, with Raha Legal. So already we were registered for that. So what I have seen, like आप बोल रहे थे कि हमको contact नहीं बनाना चाहिए, because we are now totally into education, because I'm developing international education in India right now. तो एजुकेशन में हम लोग उनको जो ट्रेनिंग्स कराते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं. अभी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होने वाला है इंदौर में 6, 7, 8, 9, 10th. जोखिम रूस, नैना कर्णारत्ने, सीमा जयरजानी, एवरीबडी इज कमिंग देयर. इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग. सो अगर हम उनसे नहीं भरवाएंगे पेपर, कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो वो एजुकेशन, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे लिए आप यूज़ करो, बट राइट वे में यूज़ करो. वो आपकी एजुकेशन को किस तरह ले जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ के संग रहे, बिल्कुल सही आपने बोला, पहले हम उन्हीं के संग खाना खाते थे, बट हमने छोड़ा उस चीज़ को, बिकॉज दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम. व्हेन वी गेट मोर फैमिलियर विद ईच अदर, देन द वर्ड रिस्पेक्ट इज देयर समवेयर, बट एक डर खत्म हो जाता है. और आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, तो उसमें भी जब भगवान राम रास्ता मांग रहे थे समुद्र में, तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया समुद्र ने, तो उन्होंने बोला था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत. तो प्रेम भी बिना डर के नहीं होता है. तो एक डर होना बहुत ज़रूरी है, जो एक लॉयर ही कर सकता है. आई एम ऑल्सो विद अ लॉ कंपनी, सृजन लीगल डूज माई ऑल वर्क. हम एम्प्लॉय को रखें, कोई प्रोडक्ट खरीदें किसी कंपनी से, कुछ भी करें. लॉरियल भी अगर हमारे संग कांटेक्ट करता है तो हमारा लॉयर उनके संग एक कांटेक्ट करता है. ये कभी बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ को, है ना. वो आपको स्पेस मांगते हैं, अपना पोस्टर लगाते हैं, उसका रेंट आप भर रहे होते हो, वो नहीं दे रहे होते हैं. टेक मनी फॉर दैट, और मिलता है आपको. ये बता दें, ये भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं. बहुत सारे ब्रांड्स के संग आप टाई अप्स करते हैं, यू आर गिविंग लॉट ऑफ बिजनेस टू देम. व्हाट एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट. अगर आपको परसेंटेज मिल रहा है वो तो सभी को मिल रहा है. लाइक दैट आप अपना स्पेस यूज़ करने को दे रहे हो. एक कोना है जहाँ पर उनका प्रोडक्ट रखा है, उन्होंने घर बनाया है आपके घर के अंदर, तो उसके लॉस भी आपको पता होना चाहिए. तो एक राइट लॉयर बहुत ज़रूरी है लाइफ में. चाहे सैलून आपका स्टार्ट हुआ हो, 1 सैलून हो, 15 सैलून हो, एक एकेडमी हो, लॉयर आपके पास जरूर होना चाहिए. I strongly believe so. Thank you so Thank much, Unnati ji. Thank Thank you. And with that, we come to the end of this panel discussion. Can we please have a round of applause for our panelists here? Thank you so much for coming here and sharing your knowledge with us. And can you please step forward for a photo op?